Hi guys, welcome back on my YouTube channel Osis Knowledge, and today we are going to discuss about the legends of Indian freedom. From today we will start from Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is father of our nation, as we all know. But today we will briefly talk about him, what he did for our nation, and what movement which movement he had led. So at first we will write down his name, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Okay. When we will when we start, I think we should start from his childhood. महात्मा गांधी born on 2 अक्टूबर 1869. 2 अक्टूबर 1869. 2 अक्टूबर 1889 को उनका जन्म हुआ था इन पोरबंदर. पोरबंदर इज इन गुजरात. ये याद रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. पोरबंदर इज इन गुजरात. द फादर ऑफ महात्मा गांधी वाज करमचंद गांधी. करमचंद गांधी वाज ऑल्सो नोन एज काबा. करमचंद गांधी जी को काबा के नाम से भी जाना जाता था. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, काबा. द फादर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी वाज करमचंद गांधी एंड ही वाज दीवान ऑफ राजकोट एंड पोरबंदर ऑल्सो. One thing that is very important for Mahatma Gandhi got married when he was only 13 year old to कस्तूरबा गांधी. महात्मा गांधी की शादी मात्र 13 वर्षों की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गई थी. After completing his schooling from Rajkot, he went to London for higher study, mainly for law. He completed his LLB from Inner Temple College. Inner Temple, this is important, you will have to remember this. Inner Temple College. उन्होंने अपनी विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद वो लंदन गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडी के लिए, लेकिन मेनली लॉ की पढ़ाई के लिए. और इनर टेम्पल कॉलेज से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की. इनर टेम्पल कॉलेज, ये याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये पूछा गया था एग्जाम में कि लंदन में किस कॉलेज से उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की थी. मेनली लॉ पढ़ने के लिए ही गए थे लंदन. इनर टेम्पल कॉलेज. इनर टेम्पल कॉलेज. इनर टेम्पल कॉलेज. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. Now we will talk about the movement which Mahatma Gandhi lead. Actually, Mahatma Gandhi began its movement from South Africa. When he was only 24 years old, he went to South Africa for the case of Dada Abdullah. Dada Abdullah was a Gujarati merchant, and when Mahatma Gandhi went to South Africa, he saw the discrimination which was happening with Indian people. Discrimination was happening on the ground of color complexion. The most important question. कलर जो मेनली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो कलर कम्प्लेक्शन को लेके हो रहा था, गोरा और काला को लेके. ये याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला के केस के लिए वो गए थे साउथ अफ्रीका. दादा अब्दुल्ला. So this is very important, Dada Abdullah and color complexion. The movement was, so Mahatma Gandhi began its movement against of color complexion. He did so many types of things for the Indian people. At first he began its सत्याग्रह movement from South Africa. सत्याग्रह जो movement हुआ था उसकी शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका से की थी. ये याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से की थी सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत, साउथ अफ्रीका से. And for against of color complexion, against of discrimination, he published a newspaper, Indian Opinion. Indian Opinion was published in 4 languages. The first was English, Hindi, Tamil and Gujarati. This is very important for examination purpose. Indian Opinion का पब्लिकेशन उन्होंने कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में किया था. वहाँ जो भेदभाव हो रहा था इसको लेके साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी उन्होंने. इंडियन ओपिनियन
अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से। इंडियन ओपिनियन, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। इंडियन, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, इंडियन ओपिनियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ओपिनियन, Indian opinion was published in 4 languages. The first was English, the second was Hindi, the third was Tamil, and the fourth was Gujarati. Okay, one thing that is also very important for Indian people and for the against of discrimination, for the against of any type of discrimination which was happening with Indian people in South Africa. He established an organization and the name of that organization was Natal Indian Congress. ये भी important है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पर्पज से। नेटल इंडियन कांग्रेस से, ओके, नेटल इंडियन कांग्रेस, ये याद रखिएगा नाम, मैं बार बार बोला हूँ। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी। नेटल, मैं बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ ताकि दिखे आप लोगों को, और हिंदी में भी लिख रहा हूँ, दोनों तरह के लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ, जिसको जो ठीक लगे वो करे। नेटल इंडियन कांग्रेस, वहाँ के इंडियन पीपल लोगों के लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। अच्छा, वन थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी जब फर्स्ट क्लास के टिकट से रेल से ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उनको कलर कम्प्लेक्शन के नाम पर पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे गोरे लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया था, धक्का मार के निकाल दिया था पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे। ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से की थी? साउथ अफ्रीका से। पहला मूवमेंट कौन था? सत्याग्रह। सत्याग्रह से शुरुआत किया था। उसके बाद वहाँ उन्होंने क्या स्थापना किया था? नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, नेटल इंडियन कांग्रेस। उसके बाद उन्होंने क्या स्थापना किया था? उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन कितने लैंग्वेज में था? 4 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड तमिल। एंड द 4th थिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, in 1915 India, Mahatma Gandhi came back to India. One thing that is also very important, in between this period in 1901 Mahatma Gandhi come back to India, and first time he participated in Congress conference in Kolkata. इस सभी मामलों के बीच में 1901 में महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं और 1901 में कोलकाता में कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं 1901 में। ये याद रखिएगा। हिंदी में लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में ताकि दिखे अच्छे से। कोलकाता के कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने 1901 में। एंड इन 1901 ही एस्टैब्लिश्ड इट्स ऑफिस इन मुंबई। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1901 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और 1901 में ही मुंबई में अपना एक कार्यालय खोलते हैं, विधि कार्यालय मुंबई। आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक टू साउथ अफ्रीका एंड देन in 1915 he come back. One thing that is very important, in 1915 the First World War began. And Mahatma Gandhi motivates Indian people to participate in the First World War for the sake of British company, for the help of British company, because it was Mahatma Gandhi's personal opinion that if British company will win this battle, Britain will left India. Britain will left India, and India got free. Yes, India got free. तो 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं भारत, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हो रहता है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता रहता है तो उसमें भारतीय लोग युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये उनका पर्सनल ओपिनियन था कि अगर भारतीय 1915 के युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रिटिश लोग जो हैं वो भारत को युद्ध के बाद आज़ाद कर देंगे। और इस वजह से महात्मा गांधी को
फौज में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी भारतीय लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके इस व्यवहार से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटेन ने उन्हें 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। केसर ए हिंद। In 1915, Britain gave him the title of केसर ए हिंद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। 1915 में ब्रिटेन ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। क्यों नवाजा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और महात्मा गांधी ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिश का सपोर्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है वो भारत को आज़ाद कर देंगे, इसलिए वो ब्रिटिश कंपनी का सपोर्ट कर रहे थे। और वो लोगों को कह रहे थे, भारतीय लोगों को, कि आप युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए, ब्रिटिश के पक्ष में लड़ाई कीजिए, ताकि जो है ब्रिटिश कंपनी हम लोग को युद्ध जीतने के बाद आज़ाद कर देगी। और उनकी इस बात से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें फौज में भर्ती करने वाला सार्जेंट करना शुरू कर दिया था, भारतीय लोगों ने, सार्जेंट। और 1915 की घटना है। और क्या हुआ कि और ब्रिटिश कंपनी भी खुश हो गई। ब्रिटिश कंपनी ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था 1915 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन gave him the title, reward him the title of केसर ए हिंद in 1915. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। One thing that is also very important, in 1917, first time in 1917, Mahatma Gandhi participated in a movement, lead a movement in 1970, and that movement is known as चंपारण movement। चंपारण, जितने बीपीएससी के लोग देख रहे हैं सब देख लें। चंपारण मूवमेंट 1917 में पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने। एक्चुअली मैं राजकुमार शुक्ल रिक्वेस्ट महात्मा गांधी टू प्लीज पार्टिसिपेट इन टू डू समथिंग फॉर तिनकोटिया ट्रेडिशन कॉन्ट्रैक्ट, तिनकोटिया प्रथा। एंड दैट्स व्हाई महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन लीड ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट कोटिया। तिनकोटिया प्रथा में क्या होता था कि एक आदमी को अपने पूरे ज़मीन के 3 पार्ट में नील की खेती करनी पड़ती थी, और एक पार्ट जो रहता था वो अपने भरण पोषण के लिए रहना पड़ता था। इसके खिलाफ जो यही है तिनकोटिया प्रथा, मतलब अपने पूरी प्रॉपर्टी, पूरा जितना ज़मीन है उसके 1/3 में मतलब आपको अपना नील का खेती करना है, और एक पार्ट जो बचेगा उसमें आप जो है अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके विरुद्ध राजकुमार शुक्ल ने उनको इन्वाइट किया था, वो बिहार के थे, चंपारण के थे, और कि आप कुछ कीजिए। तो 1917 में महात्मा गांधी फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन तिनकोटिया मूवमेंट, और तिनकोटिया मूवमेंट समाप्त हो गया। वन थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 persons belongs 2 persons, the name of 2 persons is very important who participated in तिनकोटिया movement with Mahatma Gandhi. The first name is Dr. राजेंद्र प्रसाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद। एंड द सेकेंड इज अनुग्रह नारायण सिंह। ये 2 नाम याद रखिएगा। ये सवाल मैं एक बार बीपीएससी के एग्जाम में गया था तो उसमें ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी के साथ विद्रोह में तिनकोटिया प्रथा चंपारण मूवमेंट में बिहार के कितने लोगों ने ये कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें अनुग्रह नारायण सिंह का नाम था और राजेंद्र प्रसाद जी का नाम था, और एक जगह ऑप्शन में था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह दोनों। मुझे राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद था, अनुग्रह नारायण सिंह जी का नाम याद नहीं था, तो मेरा गलती हो गया। याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे ही पटना में AN कॉलेज है। AN कॉलेज जो है वो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, तो ये ऐसे याद रखने का ये मैंने ट्रिक बताया है। AN कॉलेज जो है ये अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे है, और राजेंद्र प्रसाद जी तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, एवरीवन नोज अबाउट हिम। After 1917, Mahatma Gandhi again participated in a movement in 1918 for अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर 1917 के बाद उन्होंने 1918 में एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए, अहमदाबाद। और पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था, फर्स्ट टाइम हिम हाँ, पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था। और एक और बात, बड़ी बात है कि यहाँ इन्होंने
अहमदाबाद मिल अहमदाबाद यस ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, अहमदाबाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1918। ये मैं लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी उन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया था। आफ्टर दैट दिस मूवमेंट ही अगेन पार्टिसिपेटेड ही लीड इन खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट इज वाज ऑर्गेनाइज्ड टू एलिविएट द रेवेन्यू टैक्स। खेड़ा मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू एलिविएट द रेवेन्यू टैक्स। ये भी 1918 में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या हुआ था कि खेड़ा मूवमेंट में क्या हुआ था कि उपज जो हुआ था वो अच्छी खासी नहीं हुई थी, और गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन जो थी वो टैक्स कलेक्शन पर पूरा ध्यान दे रही थी, मतलब पूरा जोर शोर से कलेक्ट कर रही थी। तो इसके लिए टैक्स कम करने के लिए महात्मा गांधी ने 1918 के खेड़ा मूवमेंट में भी लीड किया था। ये 3 मूवमेंट 1917 से 1918 तक में महात्मा गांधी ने लीड किया था। आफ्टर दैट इन 1920 5 नवंबर 1920 को यस 5 नवंबर 1920 को महात्मा गांधी ने फिर से मूवमेंट शुरू किया रूलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ये जो मैंने डेट दिया है 5 नवंबर, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। 1920 सही है, 5 नवंबर या 12 जून था, कुछ ऐसे ही था, मतलब कन्फ्यूजन हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसमें उन्होंने नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज। 1 वर्ष में स्वराज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1920 मूवमेंट, असहयोग मूवमेंट, महात्मा गांधी स्लोगन वाज 1 वर्ष में स्वराज। उन्नीस सौ 20 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, और इसमें उन्होंने नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज। पर यह मूवमेंट 1922 में समाप्त हो गया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि लोग आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस की एक टीम ने उनको रोकने आई, जिससे लोग क्रोधित हो गए, और उन्होंने पुलिस समेत, दरोगा समेत, थाना में आग लगा दी, और जिससे महात्मा गांधी रुष्ट हो गए। क्योंकि महात्मा गांधी का जो मूवमेंट होता था, जो आंदोलन हुआ करता था, वो नॉन वायलेंस पे डिपेंड होता था। तो यहाँ वायलेंस हो गया, इसलिए इस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया इन 1920। चलिए, ये यहाँ तक रहा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ 1930 में, 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ कम्युनल रिवार्ड को लेके। 1931 इरविन समझौता, और इस समझौते के ही अंतर्गत 3 गोलमेज सम्मेलन होना था, जिसमें दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। यही याद रखिएगा। ओके, इन 1931 ओके 3 गोलमेज सम्मेलन होना था। 3 गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कम्युनल रिवार्ड को लेके, सांप्रदायिक चुनाव को लेके, सांप्रदायिकता, इसमें क्या हो रहा था कि दलितों को हिंदू से अलग किया जा रहा था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी थे। दूसरा जो हुआ था कम्युनल रिवार्ड, इसमें इरविन समझौता हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। और फिर तीसरा जो हुआ था, इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं अभी बता रहा था, लेकिन मैं बाद में भी भीमराव अंबेडकर के बारे में जब पढ़ाऊँगा तो इसमें मैं बताऊँगा भीमराव अंबेडकर। उसके बाद एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको। इन 1924 महात्मा गांधी बिकेम द सेक्रेटरी चीफ अध्यक्ष ऑफ कांग्रेस इन 1924 बेलगांव अधिवेशन। इसी बीच 1924 में महात्मा गांधी जो थे वो बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। याद रखिएगा, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
very important. These all the things what I am teaching you, these all the things are very important for examination purpose. बेलगांव अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव से अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1934 में 1934 उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। यस 1934, यस। एक बार चेक कर लीजिएगा, डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 1934 चेक कर लेना डेट। 1934 ही लेफ्ट कांग्रेस, सही होगा लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब देश की आज़ादी के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में कुछ नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फैन बंद करो तो आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। 1934 में वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे, ये चेक कर लीजिएगा। डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट फ्री फ्रॉम ब्रिटेन, ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस। आफ्टर दैट इन 1932 पूना पैक्ट हैड हैपेंड बिटवीन भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। एक्चुअली हुआ था क्या कि कम्युनल रिवार्ड जो था, एमजे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कम्युनल रिवार्ड कम्युनल रिवार्ड सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की बात की थी, जिसमें दलितों को हिंदुओं से पृथक किया गया था, अलग किया गया था दलितों को। इस वजह से क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और उन्होंने यरवदा जेल से ही आमरण अनशन की शुरुआत की थी, फास्ट इनटू डेथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यरवदा जेल, ये याद रखिएगा। कम्युनल रिवार्ड के अगेंस्ट में उन्होंने यरवदा जेल से ही आमरण अनशन की शुरुआत की थी। ये भी पूछा गया सवाल है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब सवाल पूछा ही जाता है एग्जाम में कि उन्होंने मतलब आमरण अनशन कहाँ से शुरुआत किया था। याद रखिएगा, यरवदा जेल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। यरवदा जेल से शुरुआत किया था कम्युनल रिवार्ड के अगेंस्ट में। कम्युनल रिवार्ड, टू अपोज कम्युनल रिवार्ड ही फास्ट इनटू डेथ फ्रॉम यरवदा जेल। ही बिगन फास्ट इनटू डेथ फास्ट इनटू डेथ फ्रॉम यरवदा जेल। आफ्टर this movement, a Pune pact had happened between Bhimrao Ambedkar and the supporters of Mahatma Gandhi. पूना पैक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था कि ये कम्युनल रिवार्ड जो है उसको अवमानना हो गया और हिंदुओं में से ही दलितों के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई। आरक्षित सीट, कम्युनल रिवार्ड, ये बात याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आरक्षित सीट की व्यवस्था पूना पैक्ट के बाद से की गई थी। इसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को, छोटी जाति के खिलाफ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, इसके लिए उन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने इसके लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने हरिजन सभा की स्थापना की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हरिजन सभा की स्थापना की। और एक और बात याद रखिएगा, उन्होंने हरिजन नाम से 4-5 अखबार भी प्रचारित किया। हरिजन सेवक, ये हिंदी में छपता था। ठीक है, हरिजन
हरिजन के लिए पूना पैक्ट के बाद उन्होंने उनका पूरा ध्यान जो था वो दलित जाति के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लग गया था। आफ्टर पूना पैक्ट, सो ही पब्लिश्ड हरिजन न्यूज़पेपर, हरिजन मैगजीन, हरिजन न्यूज़पेपर भी था। दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन हिंदी। एक था हरिजन शर्म, एक था हरिजन सभा। एक इंग्लिश में छपता था, एक गुजराती में छपता था। ये थोड़ा देख लीजिएगा, अपने से खुद से देख लीजिएगा। हरिजन से एक सेवक था, ये हिंदी में छपता था, और ये फिर लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है कि गुजराती में कौन था, हिंदी में कौन था। तो एक बार बुक में देख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में होगा, या नेट पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन 1942 महात्मा गांधी अगेन लीड अ मूवमेंट, एंड द नेम ऑफ दैट मूवमेंट वाज भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी एंड दिस मूवमेंट द स्लोगन ऑफ महात्मा गांधी वाज करो या मरो। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में मुख्य भूमिका निभाई, और इस मूवमेंट में उनका नारा था करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, पहले ये नाम याद रख लीजिएगा, करो या मरो का, ये नारा था करो या मरो। ये 1942 की बात थी। 1948 में महात्मा गांधी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने। 1948 नाथूराम गोडसे शूट डेड महात्मा गांधी in 1948। One thing that was very important, Mahatma Gandhi was also the title of Mahatma was given to Mohandas Karamchand Gandhi। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी 1957 के मूवमेंट में। ये छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उनको मैं लिखा देता हूँ। 1917 में जब उन्होंने चंपारण के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, when he participated in Champaran movement in 1917, Rabindranath Tagore gave him the title of Mahatma। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के टाइटल दिया था, टैगोर ने, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 के मूवमेंट में, चंपारण मूवमेंट में जब महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी 1917 के आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बताता हूँ। महात्मा गांधी जो थे वो थे, उनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। उनको महात्मा की उपाधि कौन दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया, 1917 में। क्यों दिया, चंपारण आंदोलन में से प्रभावित होकर उनको महात्मा की उपाधि दी। एक और बात, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता। ओके, ये हो गया। अब कुछ छूट गया होगा, उसको बाद में फिर हम लोग कवर करवा देंगे। ये सारा मूवमेंट हो गया। सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका में। ये याद रखिएगा, सत्याग्रह, ये सवाल एक बार पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी, तो ऑप्शन में था भारत, साउथ अफ्रीका। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, वैसे मैंने सही जवाब दिया था, लेकिन मेरे एक मित्र ने भारत टिक कर दिया था। साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह कहाँ मूवमेंट शुरू किया गया था, साउथ अफ्रीका में। साउथ, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ छूट रहा है तो मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आश्रम जो था स्थापित किया था साउथ अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में। एंड द नेम ऑफ दिस आश्रम वाज फिनिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिनिक्स, ये पूछा गया सवाल था, ये पूछा गया था एग्जाम में। बहुत सारे लोगों ने साबरमती आश्रम के बारे में टिक मार दिया था। फिनिक्स में फिनिक्स किया गया था, और ये डरबन में था, डरबन इन साउथ अफ्रीका।
The name of first ashram of Mahatma Gandhi was Phoenix, and the Phoenix was in Durban. Durban is in South Africa. One thing that was also very important, in India, Mahatma Gandhi at first established his ashram in Ahmedabad. महात्मा गांधी जब भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया, इस्टेब्लिश्ड किया, और बाद में उसको साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया, साबरमती के किनारे ट्रांसफ़र कर दिया। तो आश्रम को लेकर 3 बातें सामने आई। पहला आश्रम उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश किया था, साउथ अफ्रीका, ओके। नाम क्या था आश्रम का? फिनिक्स। साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? डरबन में। डरबन इज वेयर? डरबन इज इन साउथ अफ्रीका। 3 आश्रम का मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिनिक्स इन डरबन, दिस इज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका SA लिख रहा हूँ मैं, मतलब साउथ माने अमेरिका, अफ्रीका। दूसरा उन्होंने अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही अहमदाबाद वाला जो था वो साबरमती के किनारे ट्रांसफर होकर चला गया था, साबरमती। एक मूवमेंट और छूट गया, दांडी मार्च। दांडी मार्च was began in 1930. In this movement, Mahatma Gandhi traveled by foot 24 days.